بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل رزاق ٹی وی میں۔ مگر دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہی آج کی کہانی کی طرف۔ آج سے صدیوں پہلے کی بات ہے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ اور اس کی ملکہ حکومت کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پریاں بھی ہوتی تھی۔ اس بادشاہ اور ملکہ کے پاس بے انتہا دولت تھی اور خزانے بھرے ہوئے تھے۔ ان کے پاس بیش قیمت لباسوں کی بھی کمی نہ تھی۔ ان کے ملک میں کھانے پینے کی چیزوں کی بھی افراط تھی اور ایک نہایت شاندار بگھی بھی ان کے پاس تھی، جس میں وہ سوار ہو کر وہ دونوں روزانہ سیر کو جاتے تھے۔ اس طرح ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، مگر کمی تھی تو صرف ایک تھی، اور وہ یہ کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ برسوں سے وہ دونوں بچے کی تمنا میں گھلے جا رہے تھے اور اسی وجہ سے بہت اداس رہتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ ملکہ شاہی باغ میں سے گزرنے والے دریا میں نہا رہی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں نہانے میں مصروف تھی کہ اچانک دریا کی تہہ میں سے ایک مینڈک نکلا اور تیرتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ ملکہ نے مینڈک کی طرف نگاہ ڈالی تو وہ کہنے لگا، ملکہ، میں جانتا ہوں کہ تمہیں کس چیز کی تمنا ہے۔ تمہاری یہ تمنا پوری ہوگی اور بہت جلد تمہارے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوگی۔ مینڈک نے یہ کہا اور ڈبکی لگا کے پھر پانی میں غائب ہو گیا۔ ملکہ حیران تھی کہ ایک مینڈک کو اس کے دل کا حال کیسے معلوم ہو گیا، اور یہ کہ کیا اس کی پیشگوئی سچ ثابت ہوگی۔ اور وہ یہی کچھ سوچتی ہوئی واپس اپنے محل میں آ گئی۔ اب کرنا خدا کا ایسا ہوا، کچھ دنوں بعد ملکہ کو احساس ہونے لگا کہ وہ امید سے ہے۔ اس طرح جب 9 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو واقعی مینڈک کی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی۔ اس کے ہاں ایک خوبصورت بچی پیدا ہوئی۔ وہ تو خوش تھی ہی، لیکن بادشاہ کی مسرت کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ ہر وقت بچی کے پاس رہتا اور اسے چند لمحوں کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ خوشی میں دیوانہ ہو جائے گا۔ اس نے ملکہ سے کہا، میں اس خوشی میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کروں گا اور تمام لوگوں کو اپنی بچی دکھاؤں گا۔ اس نے اسی وقت دعوت کی تیاریوں کا حکم دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے عزیزوں، امیروں، وزیروں، دوستوں اور پاس پڑوس کے لوگوں کو دعوت کے لیے مدعو کرنے لگا۔ اس موقع پر ملکہ نے اس سے کہا، میری چند پریاں دوست ہیں، میں انہیں بھی دعوت میں بلانا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ ہماری بچی کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہو اور اس پر مہربان ہو۔ بادشاہ کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے ملکہ کو جواب دیا، تم جس کو چاہو بلا سکتی ہو، یہ خوشی کا موقع ہے، ہمیں ہر شخص کو اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ آ پڑا کہ سلطنت میں 13 پریاں تھیں جو ملکہ کی دوست تھی، اور بادشاہ کے ہاں صرف 12 سونے کی تشتریاں تھیں جن میں ان کو کھانے کو دیا جانا تھا۔ یہ دیکھ کر ملکہ بہت پریشان ہو گئی، لیکن بادشاہ نے اسے سمجھایا، اگر ایسا ہے تو تم ایک پری کو چھوڑ دو اور باقی 12 کو دعوت میں بلا لو۔ ملکہ کو یہ تجویز پسند آئی، چنانچہ اس نے 12 پریوں کو دعوت میں بلایا اور ایک کو نظر انداز کر دیا۔ اس طرح جب دعوت کا دن آیا تو دوسرے مہمانوں کے علاوہ 12 پریاں بھی آئیں۔ انہوں نے سروں پر سرخ ٹوپیاں پہن رکھی تھی اور پاؤں میں اونچی ایڑی کی سرخ جوتے پہنے ہوئے تھے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک لمبی سفید چھڑی بھی تھی۔ اس وقت ہر مہمان ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب دعوت ختم ہوئی تو ساری پریاں دائرے کی صورت میں ننھی شہزادی کے گرد جمع ہو گئی اور ہر ایک نے اپنی جانب سے بہترین تحفہ دیا۔ ایک پری نے فضیلت دی، دوسرے نے خوبصورتی دی، تیسری نے مال وزار دیا، اور اسی طرح دوسری پریوں نے بھی ایسے تحفے دیے جو ننھی شہزادی کے لیے دنیا میں بہترین ہو سکتے تھے۔ ابھی 11 پریاں اپنے تحفے دے پائی تھیں اور 12ویں باقی تھی۔ اتنے میں اچانک محل کے صحن میں شور ہونے لگا۔ سب نے چونک کر دیکھا تو 13ویں پری، جسے ملکہ نے نہیں بلایا تھا، وہ آ گئی تھی۔ اس نے سر پر سیاہ رنگ کی ٹوپی پہن رکھی تھی اور پاؤں میں جوتے بھی سیاہ تھے، اور اس کے ہاتھ میں چھڑی کے بجائے ایک جھاڑو تھی۔ وہ سیدھی اس حال میں آ گئی جہاں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ چونکہ اسے ملکہ نے دعوت میں بلایا نہیں تھا، اس لیے وہ بے انتہا غصے میں تھی۔ اس نے آتے ہی بادشاہ اور ملکہ کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور کہا، مجھے دعوت میں نہ بلا کر میری توہین کی گئی ہے، میں اس کا بدلہ لوں گی۔ سب لوگ حیران و پریشان کھڑے پری کو دیکھ رہے تھے۔ وہ چیخ کر بولی، بادشاہ کی بیٹی جب 15ویں سال میں پہنچے گی تو وہ ایک تگلے سے زخمی ہو کر مر جائے گی۔ جو ہی اس نے یہ کہا، اس کے ساتھ ہی وہ 12ویں پری آگے بڑھی جس نے ابھی تک ننھی شہزادی کو تحفہ نہیں دیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، اس کی شیطانی تمنا ضرور پوری ہوگی، مگر میں شہزادی کو کم سے کم نقصان پہنچنے دوں گی، یہی میرا تحفہ ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور بولی، جب شہزادی تگلے سے زخمی ہوگی تو اس کی موت واقع نہیں ہوگی، وہ صرف گہری نیند سو جائے گی اور 100 سال تک سوتی رہے گی۔ اس کے بعد جب پریاں اور دوسرے مہمان چلے گئے تو بادشاہ فکر مند ہوتے ہوئے
मलिका से कहने लगा, परी ने जो बुरी पेशगोई की है, हमें उससे अपनी बेटी को हर सूरत में बचाना होगा। हाँ, अपनी बेटी की पूरी हिफाजत करनी चाहिए। मलिका ने खौफजदा होते हुए जवाब दिया, तुम बेफिक्र रहो, मैं इसका इंतजाम करता हूँ। बादशाह ने यह कहकर अपने वजीरों अमीरों को तलब किया और उन्हें हुक्म दिया कि हमारी सल्तनत में जिस कदर तगले मौजूद हैं वो सब के सब जमा करके पिघला कर ज़ाया कर दिए जाए। इसके अलावा मुल्क भर में ऐलान कर दिया जाए कि आइंदा कोई शख्स तगला न बनाए। बादशाह के हुक्म की देर थी। पूरी सल्तनत में जिस कदर तगले थे सब जमा करके ज़ाया कर दिए गए और आइंदा के लिए भी लोगों को हिदायत कर दी गई कि वो कोई तकला न बनाए। बादशाह और मलिका अब मुतमिन हो गए थे। उनके मुल्क में एक भी तकला बाकी नहीं बचा था जिससे शहजादी के जख्मी होने का खतरा होता। वक्त गुजरने लगा और उस दौरान 11 परियों की वो दुआएं पूरी हो गई जो उन्होंने तोहफे के तौर पर दी थी। शहजादी बेहद हसीन हो गई थी। वो निहायत खुश अखलाक थी, नेक थी, अक्लमंद थी और हर शख्स उससे प्यार करता था। अगरचे बादशाह ने शहजादी की हिफाजत का पूरा पूरा इंतजाम कर रखा था, मगर होनी होके रहती है। आइन उस दिन जब शहजादी 15 साल की हुई, बादशाह और मलिका कहीं गए हुए थे और शहजादी महल में अकेली थी। वो यूं ही महल में इधर उधर घूमने लगी। मुख्तलिफ कमरों में घूमती घामती वो महल में एक ऐसी जगह आ गई जहाँ एक पुराना मीनार था। वहाँ तंग सीढ़ियाँ थी जो एक छोटे से दरवाजे तक चली जाती थी। उस दरवाजे में एक सोने की चाबी लगी हुई थी। शहजादी ने आगे बढ़कर चाबी घुमाई तो दरवाज़ा खुल गया। उसने देखा तो अंदर एक बुढ़िया बैठी हुई थी और बड़ी तवज्जो से काटने में मसरूफ़ थी। शहजादी उसे चरखा काटने में मसरूफ़ देखकर बड़ी मासूमियत से पूछने लगी, अच्छी अम्मा, तुम ये क्या कर रही हो? जवाब में बुढ़िया सर हिलाते हुए बोली, मैं चरखा काट रही हूँ। चरखा घूमने से एक गुनगुनाहट की सी आवाज़ पैदा हो रही थी जो शहजादी को बड़ी सुरीली लगी। वह आगे बढ़ी और चरखे की तरफ देखते हुए कहने लगी, ये किस खूबी से घूम रहा है और उसमें से कितनी प्यारी आवाज़ पैदा हो रही है। शहजादी चरखे के पास बैठ गई और काटने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभी उसने तकले को छुआ ही था कि परी की पेशगोई पूरी हो गई। तकले ने उसे जख्मी कर दिया और वो फर्श पर गिर पड़ी। अब वो वहाँ इस तरह बेहसो हरकत पड़ी थी जैसे वाकई मर चुकी हो। ताहम वो मरी नहीं थी और 12वीं परी की पेशगोई के मुताबिक गहरी नींद में चली गई थी। सिर्फ अकेली शहजादी ही नहीं सोई थी, बल्कि उसके साथ हर चीज़ नींद में चली गई थी। बादशाह और मलिका जो अभी अभी वापस महल में आए थे, वो दोनों और उनके तमाम दरबारी भी गहरी नींद सो गए थे। अस्तबल में घोड़े सो गए थे, महल के कुत्ते सो गए थे, महल की छत पर बैठे हुए कबूतर सो गए थे और दीवारों पर बैठी हुई मक्खियाँ भी सो गई थी। यही नहीं, आतिशान में आग ने भड़कना दुखना बंद कर दिया था और इस तरह आग भी सो गई थी। सीख पर लगी हुई मुर्गाबी जो बादशाह के खाने के लिए भूनी जा रही थी, वो सीख पर लगी की लगी रह गई थी। शाही पावरचंद जो उस मौके पर अपने लड़के को बालों से पकड़कर उसे किसी बात की सजा दे रही थी, वो दोनों वहीं के वहीं उसी हालत में सो गए थे। खाकसा मां जो चोरी से बादशाह की वाइन चख रहा था, वो भी उसी हालत में सो गया था तो उसके हाथ में जग पकड़ा हुआ था जो उसके लबों से लगा हुआ था। इस तरह महल की हर चीज़ अपनी अपनी जगह साकिन होकर गहरी नींद में चली गई थी। बादशाह के महल में अब कोई एक शख्स भी ऐसा न था जो जाग रहा हो। उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत जल्द महल के चारों तरफ कांटों वाली झाड़ियाँ उगाई जो वक्त के साथ साथ बड़ी होती गई, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया जब पूरा महल उन बड़ी बड़ी झाड़ियों में छुप के रह गया। न सिर्फ दीवारें और छतें छुप गई थी, बल्कि महल की चिमनियाँ और बुर्जियाँ तक दिखाई न देती थी। इधर ये हुआ और दूसरी तरफ पूरे मुल्क में ख्वाबीदा शहजादी की खबरें फैल गई। चुनाचे वक्तन फ़ोक्तन मुख्तलिफ मुल्कों के शहजादे आते रहे और कोशिश करते रहे कि किसी तरह कांटेदार घनी झाड़ियों में से गुजरकर महल में जाए, लेकिन किसी को कामयाबी हासिल न हो सकी। झाड़ियाँ इस कदर घनी और उनके कांटे इतने तेज थे कि जो भी उनमें से गुजरकर महल में जाने की कोशिश करता नाकाम हो जाता। इस तरह अब तक कई शहजादे अपनी जान गंवा बैठे थे। वक्त गुजर रहा था। आखिरकार बेशुमार बरसों के बाद किसी मुल्क का एक शहजादा उस मुल्क में आया। एक बूढ़े शख्स ने उसे शहजादी और महल के दूसरे लोगों के बारे में बताया और कहा, इन बुलंद घनी कांटेदार झाड़ियों को आज तक कोई अबूर नहीं कर सका। उनके पीछे एक खूबसूरत महल छुपा हुआ है जिसमें एक निहायत हसीन शहजादी सोई हुई है। उसके साथ महल के तमाम लोग, बादशाह और मलिका भी गहरी नींद में सोए हुए हैं। अजनबी नौजवान शहजादे ने उस बूढ़े आदमी से सवाल किया, तुम्हें यह सब कुछ कैसे मालूम है? इस पर बूढ़े ने जवाब दिया, यह सब कुछ मेरे दादा ने बताया था। उन्होंने ये भी बताया था कि बेशुमार शहजादों ने सोई हुई शहजादी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कांटेदार घनी झाड़ियों के आगे सब बेबस हो गए और अपनी जान से हाथ धो बैठे। बूढ़े की ये बात सुनकर शहजादा तन कर खड़ा हो गया और बोला, खैर ये बातें मुझे खौफजदा नहीं कर सकती।
चाहे कुछ भी हो मैं जाऊंगा और सोई हुई शहजादी तक पहुंचूंगा। बूढ़े ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, शहजादे तुम भी नाहक अपनी जान कमाओगे, अपने इरादे से बात आ जाओ। लेकिन शहजादा ना माना, कहने लगा, मुझे जान की परवाह नहीं, मैं शहजादी तक जरूर पहुंचूंगा। अब इत्तेफाक देखिए कि उसी दिन शहजादी को गहरी नींद सोए हुए 100 साल पूरे हो गए थे। लिहाजा जैसे ही शहजादा महल के करीब पहुंचा, उसे वहां कांटेदार घनी झाड़ियों का नामो निशान तक न मिला। वहां तो हर तरफ फूलों से लदी हुई झाड़ियां थी, जिनमें से वो बड़ी आसानी से गुजरता हुआ महल में चला गया। महल के सहन में जाकर देखा तो वहां कुत्ते सोए हुए थे, अस्तबल में घोड़े सोए हुए थे और महल की छत पर कबूतर नींद में डूबे हुए थे। जब वो महल के अंदर गया तो दीवारों पर मक्खियां बैठी सो रही थी, सीख पर मुर्गाबी लगी हुई थी। खानसामा अपने लबों से वाइन का जग लगाए हुए था, जैसे अभी घूंट पीने वाला हो। एक औरत अपनी गोद में परिंदा लिए बैठी थी और यूं लगता था जैसे अभी उसके पर उखाड़ने वाली हो। और बावर्ची खाने में बावरचन इस तरह अपना हाथ फिदा में उठाए हुए थी कि मालूम होता था बच्चे को मारने के लिए लपक रही हो। शहजादे ने यह सारा मंजर देखा, आगे बढ़ गया। वहां हर चीज सोई हुई थी और इस कदर खामोशी थी कि उसे अपनी सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। वो हैरत ज़दा सा होकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ आगे बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि महल के पुराने मीनार के पास पहुंच गया। उसने उस छोटे कमरे का दरवाजा खोला जिसमें शहजादी सोई हुई थी। जो ही उसकी नज़र शहजादी पर पड़ी, वो ठिठक कर खड़ा हो गया। इतनी हसीन लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। वो एक खिड़की के पास मसहरी पर गहरी नींद सोई हुई थी और इस कदर हसीन नजर आ रही थी कि शहजादा नजर भर के उसे देख भी न सकता था। वो चंद लम्हों तक वहां खड़ा उसे देखता रहा और फिर आगे बढ़कर उसका बोसा ले लिया। मगर ये क्या, वो हैरान रह गया। उसका बोसा लेना था कि अचानक शहजादी ने आंखें खोली और जाग गई। उसका जागना था तो उसके साथ ही महल की हर चीज बेदार हो गई। बादशाह और मलिका भी जाग गए और तमाम अमीर वजीर बेदार होकर एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। अस्तबल में घोड़े सर हिलाने लगे और कुत्ते भौंकते हुए भागने लगे। महल पर बैठे हुए कबूतरों ने अपने परों में से सर निकाले और शीख पर लगी हुई मुर्गा भी बादशाह के खाने के लिए भुनने लगी। खानसामा ने वाइन के जग में से घूंट पी लिया और औरत परिंदे के पर उखाड़ने लगी और बावर्चन ने लड़के के कान पर एक चाटा रसीद कर दिया। शहजादा और शहजादी दोनों बादशाह और मलिका के पास आए, जो उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। बादशाह ने शहजादी से अपनी बेटी की शादी कर दी और उसी खुशी में एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया गया। उसके बाद शहजादा और शहजादी जब तक जिंदा रहे हंसी खुशी जिंदगी गुजारते रहे और यूं ही ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।